Hello, listening friends, and welcome to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में आपका स्वागत है। We are delighted that you have joined us for this new series of messages entitled The Secrets of Positive Living. हमें बहुत खुशी है कि आप इस नई संदेश श्रृंखला को सुनने के लिए हमारे साथ सम्मिलित हैं, जिसका नाम है सकारात्मक जीवन जीने के रहस्य। In our last message, we shared the first secret of positive living. हमारे पिछले संदेश में हमने सकारात्मक जीवन जीने का पहला रहस्य आपके साथ बांटा था, which is the balancing of the inflow of God's blessings on your life with the outflow of blessings from you back to God and others. जो ये था कि आपके जीवन पर परमेश्वर की आशीषों के अंतर्वाह का आप में से आशीषों के वापस परमेश्वर और दूसरों के लिए प्रवाह के बीच में संतुलन जरूरी है। Imagine that you have a house to sell. कल्पना कीजिए आपके पास एक घर है जो आप बेचना चाहते हैं। Your whole future depends on the sale of that house. आपका पूरा भविष्य उस घर के बिकने पर निर्भर है। But because the house is falling apart, nobody's looking at it. परंतु क्योंकि घर जर्जर होकर गिर रहा है, देखने के लिए कोई भी उसे तैयार तक नहीं है। People drive in front of the house, stop for 2 seconds, and then they speed away. लोग आते हैं, घर के सामने रुककर 2 पल के लिए उसे देखते हैं और चले जाते हैं। People say to you, your house is worthless. लोग आपसे कहते हैं आपका घर तो बेकार है। Meanwhile, you're desperate. इसी दौरान आप बेचैन हो जाते हैं। After all, your whole future is dependent on the sale of that house. आखिर आपका पूरा भविष्य उस घर के बिकने पर टिका हुआ है। All the material goods that you have on God's earth are in that house. हर चीज जो परमेश्वर की सृष्टि में पाई जाती है उस घर में मौजूद है। And nobody thinks it's worth anything. और किसी को ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी काम का है। But for you, it becomes a matter of life or death. परंतु आपके लिए ये जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है। Then a buyer comes in. फिर एक खरीदार आता है। Before you can recover from your shock of seeing a buyer, इससे पहले कि आप खरीदार को देखकर झटके से उबर सकें, the buyer insists not only on giving you more than what you are asking for, वो खरीदार जोर देता है कि ना केवल इस पर के इतनी कीमत जो आप मांग रहे हैं वो उससे ज्यादा देगा, he does something that is too good to be true. बल्कि वो कुछ ऐसा करता है जो अविश्वसनीय लगता है। He says to you, not only will I buy the house, वो कहता है मैं ना केवल घर को खरीदूंगा, I will pay a deposit of not 10%, not 90%, but 100% of the purchase price up front right now. बल्कि मैं कीमत का 10% नहीं, 90% नहीं, बल्कि पूरा पैसा इसी समय अदा कर दूंगा। Now, you've heard him correctly the first time, आपने पहली बार में अब उसकी बात ठीक से सुन ली है, but you can't believe your ear. परंतु आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। So you ask him to repeat it a few times. तो आप उससे कहते हैं कि वो इसे 1-2 बार फिर से कहे। Finally, when he gives you the 100% deposit and says to you, one day I'm going to come back and close on the house. अंततः जब वो आपको पूरा पैसा देकर ये कहता है कि मैं एक दिन वापस आकर घर की चाबियां ले लूंगा। Now, my listening friend, I want you to tell me something. अब मेरे श्रोता मित्र, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ बताएं। What would your reaction be between the day you received the 100% deposit and the day of closing? जिस दिन आपने पूरा पैसा प्राप्त किया और वो दिन जब घर पर उस खरीदार का कब्जा हो जाएगा, इसके बीच के समय में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? What other things would crowd out your excitement about what just had happened? जो अभी अभी हुआ उसके अलावा और कौन सी बातें आपकी उत्तेजना को खत्म कर देंगी? What else would distract you from treasuring that incredible act of generosity? उदारता के इस अविश्वसनीय कार्य को संजोए रखने से और कौन सी बात आपका ध्यान हटाएगी? Please, my listening friend, tell me, मेरे श्रोता मित्र, कृपया मुझे ये बात बताएं। what more proof do you need that the buyer is serious about buying your house? आपको और क्या प्रमाण चाहिए कि वो खरीदार आपके घर को खरीदने के लिए गंभीर है? For the Apostle Paul, that 100% deposit of his eternal redemption was paid on the cross by Christ. प्रेरित पौलुस के लिए उसके अनंत छुटकारे का वो 100% मूल्य मसीह के द्वारा क्रूस पर चुकाया गया था। And that became his all-consuming thought and fact of life. और यही बात उसके जीवन का सच और एकमात्र विचार बन गया। That 100% deposit paid on the cross by Christ
became Paul's motivation. मसीह के द्वारा क्रूस पर चुकाई गई वो 100% कीमत पौलुस की प्रेरणा बन गई। That 100% deposit paid on the cross by Christ gave the Apostle Paul perseverance. मसीह के द्वारा क्रूस पर चुकाई गई उस 100% कीमत ने प्रेरित पौलुस को दृढ़ता प्रदान की। It gave him patience. It gave him the power to live above the grinding problems of his life. इसने उसे धैर्य दिया, इसने उसे उसके जीवन की क्षीण कर देने वाली समस्याओं से ऊपर उठकर जीवन जीने की शक्ति दी। We began the last message looking at Paul's 15 secrets of positive living in 2 Corinthians. हमने पिछला संदेश कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में सकारात्मक जीवन जीने के पौलुस के 15 रहस्यों पर गौर करते हुए प्रारंभ किया था। We saw that the first secret is grasping the principle of the inflow-outflow equation. हमने देखा कि पहला रहस्य है अंतर्वाह और बाहर की तरफ बहाव के समीकरण के सिद्धांत को समझना। Today, I want to show you Paul's second secret of positive living. आज मैं आपको पौलुस का सकारात्मक जीवन जीने का दूसरा रहस्य दिखाना चाहता हूं। It was comprehending and claiming the priceless deposit of Christ's death on the cross for our sins. ये था हमारे पापों के लिए क्रूस पर मसीह की मृत्यु की बहुमूल्य अदायगी को समझना और इसका दावा करना। I don't know about you, आपके बारे में तो मैं नहीं जानता, but if I was constantly being attacked at every turn परंतु यदि हर मोड़ पर मुझ पर प्रहार हो रहे होते and had people who are relentless in misinterpreting every move I made, और यदि ऐसे निर्दयी लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ा होता जो मेरी हर हरकत को गलत प्रमाणित करते, I don't know if I could handle it. तो मैं नहीं जानता कि मैं इससे निपट पाता या नहीं। Sometimes when a family relationship goes sour, कई बार जब कोई पारिवारिक संबंध खराब हो जाता है, when forgiveness and the Spirit of Christ departs a home, जब किसी घर में से क्षमा और मसीह का आत्मा चला जाता है, you find that each person is just waiting for the other to make a mistake. तो आप देखेंगे कि ऐसे घर में एक जन इसी प्रतीक्षा में रहता है कि दूसरा कब कोई गलती करे, And then the accusations start. और फिर दोषारोपण प्रारंभ हो जाता है। I told you so. I knew you were up to no good. मैंने तुमसे पहले ही ये कहा था, मैं जानता था कि तुम किसी काम के नहीं हो। They are waiting for the first wrong move or the first wrong word. वो पहली गलती या पहले गलत शब्द के बोले जाने का इंतजार करते हैं, And even twist the right words and make them look wrong. और यहां तक कि सही शब्दों को मरोड़कर उन्हें गलत बना देते हैं। Why do people do this? लोग ऐसा क्यों करते हैं? Do you know what I'm talking about here? आप जानते हैं मैं यहाँ किस बारे में बात कर रहा हूँ? When hatred fills a heart, you can't wait for that person to slip up so that you may condemn him. जब नफरत किसी हृदय को भर देती है तो आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि सामने वाला व्यक्ति कब गलती करे ताकि आप उसे दोषी ठहरा सके। Now, my listening friend, whether you agree with me or not, do you understand the point? अब मेरे श्रोता मित्रों, चाहे आप मेरे साथ सहमत हो या ना हो, आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। Now you understand where the Apostle Paul was. अब आप समझ रहे हैं कि प्रेरित पौलुस किस स्थिति में था। He had a group of people who hated him. कुछ ऐसे लोगों का समूह था जो उससे नफरत करते थे। They hated his uncompromising stance for the truth. वो सत्य के लिए उसके अटल खड़े रहने से नफरत करते थे, And they were criticizing him all the time. और वो हमेशा उसकी आलोचना करते थे। They would follow him to every town, and as soon as he would leave, they move in with vengeance, stirring up hatred toward the man. वो हर नगर में उसके पीछे पीछे जाते थे, और जैसे ही वो वहां से निकलता तो वो प्रतिशोध के साथ आते और उसके विरुद्ध नफरत फैलाते थे। Their strategy was very simple. उनकी कार्यविधि बड़ी साधारण थी। If they could undermine Paul's credibility, यदि वो पौलुस की विश्वसनीयता को खत्म कर दें, they would undermine his teaching. तो वो उसकी शिक्षा का असर खत्म कर देंगे। If they could turn people against him personally, they could turn people against the truth of the gospel. यदि वो लोगों को निजी रूप से पौलुस के विरुद्ध कर दें, तो वो लोगों को सुसमाचार के सत्य के विरुद्ध कर सकते थे। And sure enough, we see it right here. और बिल्कुल यही होते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। Paul sent a word to the Corinthians that he was thinking about visiting them. पौलुस ने कुरिन्थियों के पास ये सूचना भेजी कि वो उनके पास आने के बारे में सोच रहा है। But then something completely out of his control happened,
so he had to postpone his visit. परंतु तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसके वश से बाहर था, तो इस वजह से उसे वहां जाने के अपने कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। He did not cancel it, he just changed the time. उसने इसे रद्द नहीं किया, बस इसके समय को बदला। And those miserable people jumped all over this postponement. और वो दुष्ट लोग उसके इस स्थगन पर टूट पड़े। They said, you see, what did we tell you about Paul? उन्होंने कहा, देखा तुम लोगों ने, हमने पौलुस के बारे में तुम्हें क्या बताया था? Paul says one thing and does another. Paul is a liar. पौलुस कहता कुछ और है, करता कुछ और है, वो झूठा है। If they could convince people that Paul was lying about a change in schedule, यदि वो लोगों को ये यकीन दिला दें कि पौलुस कार्यक्रम में परिवर्तन के बारे में झूठ बोल रहा था, they could try to convince them that Paul was also not telling them the truth about Jesus being the only way to salvation. तो वो लोगों को ये यकीन दिलाने का भी प्रयत्न कर सकते थे कि पौलुस की ये बात भी सच नहीं है कि यीशु ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। And at that point they moved in for the kill. और इसी मौके पर उन्होंने अपना अंतिम वार किया। And they said, because Paul was untrustworthy in changing his travel plans, therefore he cannot be trustworthy in what he preaches. और उन्होंने कहा कि क्योंकि पौलुस अपनी यात्रा की योजनाओं को बदलने में विश्वसनीय नहीं था, इसलिए जो वो प्रचार करता है उसमें भी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। Oh, but that's exactly what they were really after. लेकिन वो तो इसी की तलाश में थे। They did not like Paul's strong stance for the truth of the gospel. उन्हें पौलुस का सुसमाचार के सत्य के लिए दृढ़ता से खड़े रहना पसंद नहीं था। They hated Paul's insistence that Christ alone, faith alone, and grace alone can save a sinner eternally. वो पौलुस के इस दृढ़ सत्य से घृणा करते थे कि केवल मसीह, केवल विश्वास और केवल अनुग्रह ही एक पापी को अनंत काल के लिए उद्धार दे सकता है। In 2 Corinthians chapter 1 verses 16 and 17, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 1 अध्याय के 16 और 17 पद में Paul takes a couple of seconds to explain that his change of plans does not mean that he has a divided heart. पौलुस विस्तार पूर्वक ये बताने के लिए कुछ क्षण लेता है कि उसकी योजना में बदलाव का ये मतलब नहीं है कि उसके हृदय में पक्षपात है, Or that he is being a deceiver. या ये कि वो धोखेबाज है। And then in verse 18 he goes to the heart of the matter. और फिर 18 पद में वो मसले की जड़ तक पहुंचता है। He goes for what they really were after. वो कहता है जिसकी वो ताक में थे। Not Paul himself, but the gospel that Paul and Silas and Timothy preached to the Corinthians. पौलुस की नहीं, परंतु उस सुसमाचार की ताक में जो पौलुस, सिलास और तिमोथी ने कुरिन्थियों को सुनाया था। Verse 18 says, 18 पद कहता है, But as surely as God is faithful, for the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by me and Silas and Timothy, was not yes and no, but in him it has always been yes. परंतु परमेश्वर सच्चा गवाह है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका मेरे, सिलास और तिमोथी के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार किया गया, वो हाँ और ना दोनों नहीं थी, परंतु उसमें हमेशा हाँ ही हाँ रही है। My listening friend, I want you to listen very carefully. मेरे श्रोता मित्र, मैं चाहता हूं आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। People who hate the gospel message वो लोग जो सुसमाचार के संदेश से घृणा करते हैं, will not come out and attack it up front. वो सीधे बाहर आकर इस पर प्रहार नहीं करते। They will attack the people first. वो पहले लोगों पर वार करते हैं। And sometimes believers get pulled into such accusations. और कई बार विश्वासी भी इस दोषारोपण में घसीटे जाते हैं। And they either try to defend themselves or go and hide somewhere. और वो या तो अपना बचाव करने का प्रयत्न करते हैं या फिर कहीं जाकर छिप जाते हैं। Paul's second secret for positive living was this. सकारात्मक जीवन जीने का पौलुस का दूसरा रहस्य ये था, He did not spend a whole lot of time defending himself. उसने सारा समय अपना बचाव करने में ही नहीं बिताया। He did not care much about what they thought of him. उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। So although he took time to give an explanation, he quickly moves on to talk about Christ. तो यद्यपि उसने विस्तार पूर्वक समझाने में कुछ समय लिया, लेकिन शीघ्र ही वो मसीह के बारे में बताने लगता है। Paul says, For whatever you say about me, which is untrue, let me tell you this.
पौलुस कहता है, मेरे बारे में तुम जो कुछ भी कह रहे हो जो कि झूठ है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, In Jesus, all of the promises of God have been fulfilled. परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं यीशु में पूर्ण हुई। In Jesus, all of the blessings of God are given. यीशु में परमेश्वर की सारी आशीषें प्रदान की जाती हैं। In Jesus only, salvation is found. केवल यीशु में ही उद्धार पाया जाता है। In Jesus only, joy and peace are found. केवल यीशु में ही आनंद और शांति पाई जाती है। And not in accommodating yourself to culture is the true power, strength, and glory. सच्ची शक्ति, सामर्थ और महिमा अपने आप को संस्कृति में ढालने से नहीं पाई जाती। So, my listening friends, next time somebody comes to you and attacks you, तो मेरे श्रोता मित्र, अगली बार जब कोई आकर आप पर प्रहार करे, say to them, let me tell you about Jesus. तो उनसे कहिए, मैं आपको यीशु के बारे में बताता हूँ, Let me tell you about his salvation. मैं आपको उसके उद्धार के बारे में बताता हूँ, Let me tell you about his forgiveness of sins. मैं आपको उसके द्वारा पापों की क्षमा के बारे में बताता हूँ, Let me tell you about his love for you. मैं आपको आपके लिए उसके प्रेम के बारे में बताता हूँ, Let me tell you about his gift of eternal life. मैं आपको उसके अनंत जीवन के वरदान के बारे में बताता हूँ, Let me tell you about how he never lets you down. मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देता, He never leaves you nor forsakes you. वो कभी भी आपको छोड़ता और त्यागता नहीं है, He never changes his mind about you. वो आपके बारे में कभी भी अपने इरादे को नहीं बदलता, He rejoices over you with singing. वो गाते हुए आपके लिए आनंद मनाता है। He is the same yesterday, today, and forever, with no shadow of change. वो बदलाव की छाया से परे कल, आज और युगान युग एक सा है। He is the beginning and the end. वो ही शुरुआत और वही अंत है। The second secret for positive living is clinging to the priceless deposit of Jesus Christ's sacrifice for you. सकारात्मक जीवन जीने का दूसरा रहस्य है आपके लिए मसीह के बलिदान की अमूल्य अदायगी से लिपटे रहना। The second secret for positive living is to be consumed by this precious 100% deposit. सकारात्मक जीवन जीने का दूसरा रहस्य है उसकी इस बहुमूल्य 100% अदायगी में खो जाना। Lifting up Jesus even at the cost of personal criticism. अपनी आलोचना झेल कर भी यीशु को ऊंचा उठाना। Like the story I told you earlier about the man who got 100% of the deposit on his house. उस कहानी के समान जो मैंने आपको पहले बताई थी उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपने घर की कीमत का 100% प्राप्त किया। He became free of doubt and became certain of the buyer's intention. वो संदेह से छूट गया और उसने खरीदार के इरादे की निश्चयता को जान लिया। He was longing for the day of closing and overcoming his fear and anxiety. वो घर को दे दिए जाने और अपने भय और चिंता पर विजय पाने की चाह में था। In the same way, if you want to experience positive living, इसी प्रकार से यदि आप भी सकारात्मक जीवन जीने का अनुभव पाना चाहते हैं, know that the 100% deposit of Christ within you is your security. तो जान लें कि आप में मसीह की 100% अदायगी आपकी सुरक्षा है। When you accept Christ's sacrifice on the cross to be for you, जब आप मान लेते हैं कि क्रूस पर मसीह का बलिदान आपके लिए था, you receive the priceless deposit of His Holy Spirit within you. तो आप अपने अंदर उसके पवित्र आत्मा की अमूल्य अदायगी को प्राप्त कर लेते हैं। Claiming that priceless deposit, you too can live positively. उस अमूल्य अदायगी का दावा करके आप भी सकारात्मक रीति से जी सकते हैं। No matter what people do or say, चाहे लोग कुछ भी कहें या करें, no matter what the circumstances may be, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, no matter what walls you may hit or pitfalls you may experience, चाहे आप किन्हीं दीवारों से टकराएं और गड्ढों का अनुभव करें, the 100% deposit is in hand and nothing is going to change that. वो 100% अदायगी आपके हाथ में है और कोई भी और कुछ भी इसे बदल नहीं सकता। Now there are a few things that Paul said about that precious deposit. कुछ और बातें हैं जो पौलुस ने उस बहुमूल्य अदायगी के बारे में कही। And if you do have your Bible, please turn to verses 21 and 22 of chapter 1 of 2 Corinthians. और यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया इसे दूसरे कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय के 21 और 22 पद पर खोलिए।
और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया, वही परमेश्वर है जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया। First, God is the one who gave us the 100% deposit. सबसे पहली बात यह कि परमेश्वर ही है जिसने हमें वो 100% पेशगी अदायगी की है, And nothing and no one can take it away. और कुछ भी और कोई भी इसे छीन नहीं सकता। He said, For God established us in Christ. उसने कहा क्योंकि परमेश्वर ने हमें मसीह में स्थिर किया। Secondly, with that 100% deposit, God anointed the believers. दूसरा, उस 100% बयाने के साथ परमेश्वर ने विश्वासियों का अभिषेक किया। To anoint someone is to set them apart, commission them, and authorize them. किसी का अभिषेक करने का अर्थ है उन्हें अलग करना, नियुक्त करना और अधिकार देना। And we are commissioned and authorized as ambassadors of the Lord Jesus Christ. और हमें प्रभु यीशु मसीह के राजदूतों के रूप में नियुक्त किया गया है और अधिकार दिया गया है। My listening friend, please listen carefully as we conclude. मेरे श्रोता मित्र, हमारे समाप्त करते हुए कृपया ध्यानपूर्वक सुने। Many of you are facing problems. आप में से बहुत लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। Physical problems, शारीरिक समस्याएं, family problems, पारिवारिक समस्याएं, financial problems. आर्थिक समस्याएं। Some of you will face new problems tomorrow morning. आप में से कईयों का कल सुबह नई समस्याओं के साथ सामना होगा। But if you allow problems to get you down, परंतु यदि आप अपनी समस्याओं को अनुमति देते हैं कि वो आपको नीचे गिरा दें, it is because you have forgotten the second secret of positive living. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सकारात्मक जीवन जीने के दूसरे रहस्य को भूल गए हैं, Your priceless deposit of the Lord Jesus Christ in your life. जो ये है आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की अमूल्य पेशगी अदायगी। And until next time, remember the priceless deposit. और अगली बार तक उस अमूल्य अदायगी को याद रखें। And may He bless you with God's richest blessing. और मेरी कामना है कि वो आपको परमेश्वर की उत्तम आशीषें प्रदान करे।